Welcome to my channel Legal Mindset with Vagisha Shambhavi. So here I will be discussing how to study law with ease. As the name says, legal mindset. So our focus will be how to study law with ease. Today I will be taking a little introduction of law and jurisprudence. As we know, jurisprudence is a subject of law when we are doing law. But what I feel is jurisprudence is the beginning of law. So we need to know what exactly is jurisprudence, as it will tell us how the laws came into force. Jurisprudence is the beginning of law. To understand, you can think like this, that jurisprudence is something which is the base of law, beginning of law. Now, jurisprudence in itself is made up of two Latin words, juris and prudence. Juris means law and prudence means knowledge. So jurisprudence basically means knowledge of law. Law की knowledge को jurisprudence बोलते हैं. Law, we all know what is law. Law is a set of rules which maintain peace, security, and equality or justice in society. Law maintains a set of rules which maintains peace, security, equality, and justice in society. These are not the same thing, don't mistake it. Equality and justice in society. So, set of rules which helps to maintain peace, security, equality, and justice in the society. Okay, clear? So juris means law, prudence means knowledge, and law is a set of rules which maintains these things in the society: peace, security, equality, and justice in the society. Fine. Now, why am I starting with jurisprudence? Why I said jurisprudence is the base of law? We can call like जैसे मदर को बच्चों के बारे में सब कुछ पता होता है. Similarly, if we want to know about the details of law, we need to understand jurisprudence. In jurisprudence, we study different theories of law. Then, why was it created? Why was law created? How it should be created? How it should be? How the laws should be? And jurists. We will basically majorly, if I categorize jurisprudence, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लॉ. डिफरेंट थ्योरी क्या होती है? किसी भी इंसान ने जो कि एक मैन ऑफ रिकॉग्निशन है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है किसी फील्ड में, वो अगर अपने ये नॉलेज को शेयर करता है, वो अगर अपने थॉट्स को शेयर करता है, तो दैट इज अ थ्योरी. Okay, for example, in jurisprudence, I will give only example. डिटेल में हम लोग जो jurisprudence की क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगी, बट आज मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं तो मैं बताती हूँ. एक ऑस्टिन, बिफोर ऑस्टिन बेंथम, ठीक है. जैसे ये बेंथम, ऑस्टिन, ये लोग जूरिस्ट्स हैं,
जिन्होंने अपने थॉट्स दिए कि लॉज को कैसा होना चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वन मोर वेरी मेजर क्वेश्चन दैट जूरिस्प्रूडेंस आंसर्स इज नीड ऑफ क्रिएशन, नीड ऑफ क्रिएशन, फाइन। यही जो वाई वॉज लॉ क्रिएटेड है, इसको वी कॉल इट नीड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। वाई लॉ वॉज क्रिएटेड इज इन जनरल, लॉज क्यों क्रिएट किए गए, नीड ऑफ क्रिएशन जो है वो हर लॉ का भी अलग हो सकता है ना। वाई लॉ इज क्रिएटेड ऑल्सो हो सकता है डिफरेंट, बट नीड ऑफ क्रिएशन वी यूज व्हेन, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ आईपीसी, what is the need of creation of CPC or any other law, when we talk in that sense कि किसी एक particular law को codify करने का, create करने का क्या need है, वो हम jurisprudence as a subject जब पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीजें डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज क्या होती है, फिर और थ्योरीज है, मतलब देखो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया, बेंथम और ऑस्टिन दो अलग अलग जूरिस्ट हैं। सो जब हम बेंथम की बात करते हैं, बेंथम ने अपना एक थॉट प्रोसेस दिया जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन। डिटेल इन डिटेल आई विल डिस्कस इट अगेन। नाउ ऑस्टिन ने कोई और थ्योरी दिया कि लॉज ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे। सो जब भी एक जूरिस्ट आता है, बेंथम वाज वन ऑफ द फर्स्ट जूरिस्ट टू स्पीक अबाउट लॉज, या वो क्यों बनने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, उनका क्या फंक्शन है सोसाइटी में, ये सब डिस्कस करने वाले जो पहले जूरिस्ट हैं। जूरिस्ट कौन होते हैं, जूरिस्ट आर लीगल थिंकर्स। जैसे हमें पता है हर फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट कौन होता है, जो उस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करता है, या जिसने बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है, जो बहुत बारीकी से सोचता है उस फील्ड के बारे में, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट हु एक्सप्रेसेस हिज आइडिया। ओके, सो जूरिस्ट कौन होता है, एनी लीगल थिंकर, कोई भी जो लॉ के फील्ड में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट पर्सन इज अ लीगल थिंकर। नाउ jurists are legal thinkers, मतलब thinkers who think about law too much, so we can call them as philosophers of law also, ठीक है। तो अब ये बेंथम इज वन ऑफ द फर्स्ट जूरिस्ट, ही इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड जूरिस्ट जो अपनी एक थ्योरी देता है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमें पता है सोसाइटी जो है हमारी डायनेमिक है, रोज कुछ नया चेंज आता है। अभी करेंटली हम चेंजेस को जैसे देखें तो मॉडर्नाइजेशन, डे बाय डे हम और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे रोज हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, चेंज होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स इन अ वे दैट, मशीन्स का क्या होता है, हम कैलकुलेटेड चल सकते हैं मशीन्स में। ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है, इट इज अ सेंटर ऑफ आइडियाज। ह्यूमन ब्रेन इज अ सेंटर ऑफ आइडियाज। हम लोग सबके दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं और वो सारे आइडियाज में से बहुत, मतलब व्हेन यू अप्लाई दैट और व्हेन यू शेयर दैट आइडिया, यू बिकम एन एक्सपर्ट, बिकॉज आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोचो, अप्लाई करो अपने आइडिया को, दैट इज द पर्सन इज कॉल्ड थिंकर, जो बार बार ऐसे कर रहे हैं। ओके, दैट बिकम्स अ थिंकर्स माइंड देन। नाउ व्हाट आई सेड, डिफरेंट थ्योरीज। अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैंने बोला बेंथम आए, जेरेमी बेंथम इनका फुल नेम है। बेंथम ने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। नाउ दैट थ्योरी जो था वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लॉज क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, है ना। उसके बाद जब ऑस्टिन आए, ऑस्टिन वन ऑफ हिज डिसाइपल्स थे, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफ बेंथम, ओके, और जूनियर स्कॉलर में भी, तो उनके डिसाइपल थे ऑस्टिन। ऑस्टिन ने अपना एक थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया दिया, मतलब जरूरी नहीं है कि वी फॉलो द टीचर ब्लाइंडली, है ना। ऑल ऑफ अस आर हैविंग ह्यूमन ब्रेन, ऑल ऑफ अस कैन थिंक, ऑल ऑफ अस कैन डेवलप आवर ओन आइडियाज। तो अब क्या हुआ,
ऑस्टिन ने अपना एक सेपरेट आइडिया दिया जिसको हम लीगल पॉजिटिविज्म बोलते हैं। इनकी थ्योरी को पॉजिटिविस्ट थ्योरी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, क्यों ये नई थ्योरी की जरूरत पड़ी? अब मैं, अगर आप और मैं भी बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगी, आपको लगेगा कि नहीं ये चीज ऐसे भी हो सकती है। सो व्हेन बेंथम गेव अ थ्योरी, then Austin had slightly different viewpoint on the same thing, on the same subject, that is law. Austin had a separate kind of viewpoint on law, so he gave his own theory. ठीक है, ऐसे फिर आगे जाके ऑस्टिन की थ्योरी में किसी को कोई कमी लगी, उसने अपना थ्योरी दिया। I will teach, there are 5 to 6 important jurists जिनकी थ्योरीज हमें जाननी चाहिए, okay, relevant theories, important theories. So but now then I'll stop here only because we are into introduction today. Sorry, we are into introduction today. Fine. So different theories of law. Then why law was created? Law की जरूरत कहां से पड़ी? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, पहले हम लोग नोमैड्स थे। वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम हियर एंड हियर टू देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। फिर जब लोग एक साथ रहने लगे, ये मैंने बिल्कुल बिगिनिंग का बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सेटल लाइफ जीने लगे, जब लोग एक जगह सेटल होने लगे, तो कॉलोनीज टाइप दे यूज टू सेटल, जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू मे बी अवेयर अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। तो सिविलाइजेशन क्या था? एक एरिया लिया लोगों ने, उसी एरिया के अराउंड सेटल करने लगे, ओके, मेजरली रिवर्स के अराउंड। वाई? बिकॉज रिवर्स वेयर अ सोर्स ऑफ वाटर एंड ऑल्सो फर्टाइल सॉइल होती है रिवर्स में, पानी की वजह से वहां पे फार्मिंग भी पॉसिबल बेटर वे में होती है। तो लोग रिवर्स के अराउंड सेटल होने लगे। तो when people started settling together, मतलब बहुत लोग एक ही जगह सेटल होने लगे, तो उनमें क्लैशेस शुरू हो गए। कैसे क्लैशेस? ये एरिया मेरा है, या ये मतलब दे स्टार्टेड सेपरेटिंग प्रॉपर्टी, पावर एक्सेट्रा। अब क्या है, लोगों में लड़ाई हो गई किसी बात को लेके, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है। सो व्हेन पीपल मूव्ड फ्रॉम नोमैड्स टू सिविलाइज्ड पीपल, हाउ सिविलाइज्ड पीपल? सिविलाइज्ड कहां से आता है? सिविलाइजेशन से। जब एक जगह सेटल होने लगे, सिविलाइजेशन में रहने लगे, तो उनको हम सिविलाइज्ड पीपल कहने लग गए। क्यों सिविलाइज्ड? हाउ आर दे सिविलाइज्ड? सिविलाइज्ड इन द सेंस, जब एक साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और उनको हैंडल करने का तरीका भी आएगा। अंडरस्टूड? जब एक साथ 10 लोग रहेंगे तो उनमें जो क्लैशेस होंगे, इवेंचुअली उनको वो सॉल्व करना भी आएगा बातचीत करके, या मे बी द स्ट्रॉन्गर पर्सन जो है, हिज वर्ड विल प्रिवेल ओवर द वीकर वन, है ना, ऐसा हो या कुछ भी हो, मतलब एक सिस्टम में रहना आ गया उन लोगों को एक साथ। सो देन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, आज हम लोग जहां रहते हैं उसको सिविलाइज्ड सोसाइटी कहेंगे, उसमें हमें चाहिए क्या होता है? पीस, शांति चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कोई किसी को हार्म ना करे, इसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है, इक्वालिटी चाहिए होती है, बराबरी, सबको बराबर के राइट्स मिले और इक्वालिटी मेंटेन्ड हो, है ना। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस फील कराएं, किसी को लेफ्ट आउट फील कराएं सोसाइटी में, तो वहीं से एक क्लैश स्टार्ट होता है। इफ देयर इज इक्वालिटी, then, and equality is a very big word. We have to discuss equality in like again a 20 minutes lecture. I will again describe equality in many senses. Okay, so equality चाहिए होती है, बराबरी, and then justice. Justice मतलब सबको न्याय चाहिए होता है, सबको फेयर डिसीजन चाहिए होता है, किसी भी फाइट का या किसी भी क्लैश का फेयरनेस के साथ डील किया जाना चाहिए। That is justice. When you are treated fairly, then you get justice. Now, ये सब हो गया, सोसाइटी में यही सब चाहिए होता है। ये सब के लिए क्या करने लगे? एक रूल रेगुलेशन होना जरूरी है सोसाइटी में, तभी ये सब मिल पाएगा। पीस कैसे रहेगा? अगर एक रूल हो कि भाई जिसने बाउंड्री वॉल जहां तक की वो उसका पोर्शन है,
और या जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उसकी ही है, यू कैन नॉट मिसयूज, यू कैन नॉट ट्रेसपास इन दैट, आप उसमें जबरदस्ती नहीं एंटर करके यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, रूल है, एक रूल जो सोसाइटी को पीसफुली चलाने के लिए रिक्वायर्ड है कि किसी का कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें सब लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट एंटर इनटू समवन एल्सेस होम, यू कैन नॉट थ्रेट समवन। ये सब क्या है, ये सब रूल्स जो हैं ये पीस और सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए रूल्स चाहिए, वो ऐसे रूल्स हैं। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये अगर हम सोसाइटल लेवल पे, अगर सोसाइटी की लेवल पे हम ऐसे कोई रूल्स बना दें कि भाई हर किसी का जो बाउंड्री है वो उसी इंसान के एक्सेस में होना चाहिए, पड़ोसी उस पे वो नहीं कब्जा कर सकता या कुछ ऐसा, तो क्या लगता है लोग फॉलो करेंगे? मे बी एंड मे बी नॉट। हर इंसान की माइंडसेट अलग है ना। और जो सुपीरियर होते हैं, वी कैन सी हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री, जो सुपीरियर होते हैं वो अपने पावर की फाइट हमेशा कंटिन्यू करते हैं। सुपीरियर को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं, तो वो सुपीरियर है क्यों? उसको अपनी बात चलानी है, अपनी बात चलानी है तो क्लैश होगा, तो वो क्यों माने कोई रूल्स, है ना। तो इसीलिए हमें ये रूल्स को इन द फॉर्म ऑफ लॉज डेवलप करना पड़ा, और इसीलिए लॉ रिक्वायर्ड है सोसाइटी में, सो दैट लॉ रूल में क्या डिफरेंस है देन, दीज आर रूल्स विच आर फॉलोड बाय सैंक्शंस, रूल्स फॉलोड बाय सैंक्शंस, सैंक्शंस और पनिशमेंट्स, ठीक है, सैंक्शंस और पनिशमेंट्स, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, है ना। पनिशमेंट्स, रूल्स फॉलोड बाय पनिशमेंट्स मतलब हमने एक रूल बना दिया, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्टल का रूल होता है इन टाइम आउट टाइम, है ना। तो अगर हमने इन टाइम कर दिया रूल कि 8 o'clock इन द इवनिंग, उसके बाद आप इन नहीं कर सकते हॉस्टल में, नाउ दिस इज अ रूल। इफ वी से अगर आप उसके बाद इन करोगे यू विल बी पनिशेबल, दैट बिकम्स अ लॉ। ये मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल दे रही हूं। जैसे कंट्री में भी क्या होता है, हमने ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा लॉ है कि आप किसी के घर में घुस नहीं सकते जबरदस्ती, लेकिन ये रूल लोग क्यों फॉलो करेंगे? तो इसके बाद हमने एक पनिशमेंट बना दिया, एक सेक्शन बना दिया लॉ में जिसको हम कहते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास, अब ये ट्रेसपास क्या है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में नहीं एंटर कर सकते हैं विदाउट परमिशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, और इफ यू डू सो यू विल बी पनिशेबल। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेसपास। तो जब पनिशमेंट हो जाता है तो लोग उसको और सीरियसनेस के साथ फॉलो करते हैं, एंड देन द रूल बिकम्स अ लॉ। फाइन। तो अब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लॉ वी हैव डन, व्हाई इज लॉ क्रिएटेड, अंडरस्टूड, कहां से लॉज की रिक्वायरमेंट हुई। Whenever there will be a conflict or problem in the society, एक लॉ की क्रिएशन की रिक्वायरमेंट होगी टू सॉल्व दैट। देन हाउ इट शुड बी, हाउ इट शुड बी मतलब हाउ द लॉज शुड बी, ठीक है, कैसे होने चाहिए लॉज। लॉज हमारे स्ट्रिक्ट इन नेचर होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे बेंथम ने बोला। बेंथम की थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, एज आई सेड यू अर्लियर, है ना, प्लेजर एंड पेन, थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन गिवन बाय बेंथम। इसमें ये क्या कहते हैं, लॉज शुड बी सच which create pain for minimum population and pleasure for maximum population. He does not talk about laws should maintain peace, security, equality, etc. ये आज के मेजर्स हैं, ये मॉडर्न लॉज के मेजर्स हैं, ठीक है। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं, साथ में कि आपको अभी के लॉज क्या करते हैं ये जानने की जरूरत है।
तो ये मॉडर्न लॉज ये सब मेंटेन करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट, ये सब मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट मॉडर्न लॉज में है, मॉडर्न लॉ शुड डू दैट। बट बेंथम हु वाज द फर्स्ट जूरिस्ट, उसने क्या सोसाइटी में डिस्क्राइब किया कि जो ऐसे रूल्स होते हैं जो कम से कम लोगों को पेन दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेजर दें, दोज आर द सक्सेसफुल लॉज। हाउ लॉज शुड बी का आंसर बता रही हूं मैं, तो वो उसने बताया ऐसे होने चाहिए लॉज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका क्या मतलब है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इन करंट सिनेरियो ऑल्सो इफ यू सी, अगर एक इंसान किसी को किडनैप कर रहा है, तो वो किडनैप कर रहा है तो सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, जो किडनैप हो रहा है वो परेशान, उसके घर वाले परेशान, सोसाइटी में नेगेटिव मैसेज, तो इट इज पेनफुल फॉर सो मेनी पीपल, है ना। Whereas when we punish them, when we punish the person who kidnaps someone else, वो एक आदमी या उसकी फैमिली परेशान हो रही है, बट अदर देन हिम द होल सोसाइटी इज हैप्पी, सेफ, सिक्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे पॉपुलेशन को पेन हो रहा है, बड़े पॉपुलेशन को प्लेजर हो रहा है। दैट वाज द थ्योरी ऑफ बेंथम। लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट द फाइनल वे ऑफ मेकिंग अ लॉ। That was the first theory given by one of the first jurists who explained that laws should be in such a way. Fine. अब ये ऑस्टिन क्या बोलते हैं, ऑस्टिन gave a positivist theory. Theory of positivism, legal positivism, legal positivism, ठीक है, थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। इसमें क्या बोला ऑस्टिन ने कि जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द रूल्स मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल इंफीरियर, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा सा क्लियर कर रही हूं, ठीक है। रूल्स मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर for political inferior, ठीक है। मतलब सोसाइटी में क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर का कॉन्सेप्ट तो है ही, ठीक है, ए एंड बी, एक ऊपर है एक नीचे है, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है। किस सेंस में, अभी भी हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि लॉज शुड मेंटेन इक्वालिटी व्हेन वी आर डिस्कसिंग मॉडर्न लॉज। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्या सोसाइटी में इक्वालिटी है ऑलरेडी, नहीं है, इसलिए हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में बहुत लेवल्स पे इक्वालिटी नहीं है और उसको हमें मेंटेन करना है, इसलिए हम अभी भी इक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। स्टिल इट इज अ मेजर रीजन ऑफ मेकिंग लॉज सो दैट देयर इज इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाए हम। अब ये सुपीरियर इंफीरियर कैसे, एग्जाम्पल देती हूं मैं, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण्स आर सुपीरियर एंड शूद्रास आर इंफीरियर, जो हमने पढ़ा है ना, ब्राह्मण्स आर सुपीरियर, शूद्रास आर इंफीरियर। तो ये कैसे होता था कि किसी को हम बड़ा मान रहे हैं, किसी को छोटा मान रहे हैं, किसी को मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी मान रहे हैं। शूद्रास वेर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, सो दे वर सो इंफीरियर कि उनको अनटचेबल डिक्लेयर किया गया था, अनटचेबल माना जाता था। बट हियर दिस आई गिव यू एग्जांपल ऑफ सुपीरियर इंफीरियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सुपीरियर, पॉलिटिकल इंफीरियर। In case of Austin's theory, that is a theory of legal positivism, we will see that superior और inferior क्या होता है, जैसे कि अभी हो गया बीजेपी है हमारा, एक तरीके से जो गवर्नमेंट पार्टी है जो लीड कर रहा है या जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, एंड ऑल द अदर्स आर इंफीरियर, ऑल द पीपल, है ना। हम लोग कौन है, वैसे तो in our democratic system main power is with the people only, we say that democracy is by the people, for the people, of the people.
लेकिन यहाँ पॉलिटिकल सुपीरियर और पॉलिटिकल इंफीरियर का क्या मतलब है? जो भी पावर में है, anyone who is in power. Okay, we will not give this example. I will teach you with some other example. You see, जब किंगशिप का सिस्टम होता था, किंग्स एंड कोर्टमैन जो होते थे और बाकी का पॉपुलेशन जो होता था वो पॉलिटिकल इंफीरियर होता था। किंग्स एंड कोर्टमैन जो उसके कोर्ट में लोग होते थे, जो लॉज बनाते थे, वो पॉलिटिकली सुपीरियर पोजीशन पे थे। दे वर द लॉ मेकर्स। डेमोक्रेसी में तो एक तरीके से हम इक्वल हो गए, वी हैव इलेक्टेड देम, सो दैट इज नॉट एन एप्ट एग्जाम्पल। बट इफ आई टेल यू अबाउट किंगशिप, किंगशिप में क्या होता था? किंग्स और जो उनके कोर्टमैन है वो लॉज बनाते थे फॉर ऑल द पीपल, फॉर द होल ऑफ पॉपुलेशन। सो जिनके लिए लॉज बन रहे हैं वो कौन हो गए? पॉलिटिकल इंफीरियर, क्योंकि पॉलिटिकली वो कम पावरफुल है। जो लॉ बना रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल सुपीरियर। तो ऑस्टिन ने क्या समझाया कि कोई सही गलत का कोई मेजरमेंट नहीं है या पेन प्लेजर का कोई मेजरमेंट नहीं है। लॉज क्या होते हैं कि अगर पॉलिटिकल सुपीरियर एक रूल्स बना रहा है, एक सेट ऑफ रूल्स जो कि पॉलिटिकल इंफीरियर को फॉलो करने पड़ रहे हैं, उनको मानने पड़ रहे हैं, तो दैट इज लॉ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो प्लेजर किसको प्रोवाइड करे, किसको पेन प्रोवाइड करे, दैट इज इररिलेवेंट हियर। ठीक है, तो ऑस्टिन ने ऐसे एक्सप्लेन किया। तो हर किसी ने व्हाई वाज लॉ क्रिएटेड का एक अपना अलग प्रिंसिपल फंडा बताया। आजकल के लॉज क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ये सब मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हाउ लॉ शुड बी का भी अपना फंडा बताया। किसी ने बताया ऐसे होने चाहिए जो प्लेजर प्रोवाइड करें, पेन कम लोगों को प्रोवाइड करें। किसी ने बताया कुछ भी जो सुपीरियर बना दे, पॉलिटिकल सुपीरियर, दैट इज अ लॉ फॉर पॉलिटिकल इंफीरियर। ठीक है, तो हाउ लॉ शुड बी भी हम समझ चुके। जूरिस्ट आपको पता चल गया, लीगल थिंकर्स होते हैं जूरिस्ट। And need of creation also I told you, whenever there is a problem in society we need to create laws to combat that problem, to solve that problem. Okay, समझ आ गया ये वाला पोर्शन पूरा कि जूरिस्प्रूडेंस की रिक्वायरमेंट, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन जूरिस्प्रूडेंस के साथ क्यों किया है लॉज का? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से बेस ऑफ लॉ है, रूट्स ऑफ अ ट्री जैसे होता है, वैसे जूरिस्प्रूडेंस को हम बेस ऑफ लॉज मान सकते हैं। देन लॉज भी आपको मैंने बता दिया। लॉज को पनिशमेंट्स फॉलोड बाय, रूल्स फॉलोड बाय पनिशमेंट्स क्यों होने चाहिए? टू एंश्योर दैट दे आर फॉलोड, टू क्रिएट अ फियर इन द माइंड ऑफ सोसाइटी कि उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन टू लॉज। इंट्रोडक्शन क्या बताया मैंने? लॉज का क्या फंक्शन है करंट डे में, और क्या कैसे लॉज होने चाहिए, क्यों लॉज बने, है ना? ये सब हमने आज किया है। नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके, देन वी विल प्रोसीड विद कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द मदर ऑफ ऑल लॉज फॉर नाउ इन आवर टाइम इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ and all the other laws should be following the provisions of constitution. They cannot be conflicting with the provisions of constitution. Constitution के खिलाफ नहीं हो सकते हैं कोई laws. सारे laws को constitution के provisions के साथ या उसको follow करते हुए होना चाहिए. Fine. So I will next class I will be telling about sources of law. कहाँ से आए laws, and then we will proceed with the constitution. After that I will be taking one law every time. Okay, I'll be completing each law one by one. Thank you so much. If you have any doubts, please write in the comment section. I will answer them in the next class.